Okay. Good morning and welcome to the e-learning classes of T.V. Patel English Medium Higher Secondary School. You all must be very happy and healthy at home. I hope you all are preparing for the forthcoming unit test 2 on 27th and 28th August of this month. Okay, I have already sent your syllabus in the group for 11th and 12th standard English medium students who are preparing for this unit test. I hope you must be all learning and studying properly at home through these e-learning classes and by your own self. As you all know that in the last unit test, the question answer, multiple choice type of question and grammar section where fill in the blanks of editing text was asked, transformation of do as directed, prepare all the types of sentences, simple, compound and complex sentences, change the voice, change the degree, article, right, make degree of comparison, all the three types of degree of comparison, and in this way you can prepare for your second unit test 2. Now you all must be knowing well about the tense pattern which I have already started and put forward in the group in the very initial stage when the school had started this e-learning classes, and I hope you all must have prepared it well, because on the basis of those tense pattern you can build up your base platform for the English speaking subject. Now if we talk about the use of those tense pattern, you can see that in a language we have to make use of function verbs, helping verbs, auxiliaries. That is what we have made use of in the tense pattern: shall, will, have, was, were, had, and with the help of these auxiliaries and helping verbs we have to identify the types of sentences. Means if we identify the types of sentences, then we can make use of proper sentences in the sentences. For example, if we talk about editing of text, now in English medium section C, all this type of section C, all this type of grammar questions, are asked, and it is of 20 marks in total, in which it includes fill in the blanks, editing text, idiom phrase, then do as directed and indirect narration. Now all these 5-6 type of questions carry 20 marks, and editing text is one of them. You have learned in 9th, 10th and 12th standard student have also learned in 11th that what is editing text. Now editing text can be of different fill in the blanks type, where you have to sometimes write tense pattern verb form, sometimes you have to write article, sometimes you have to write pronoun, noun, and that's how the editing of tense pattern is getting done.
Now here we have taken one paragraph where we have to edit the text. We have to edit the text and you have to read it. How can you easily follow this question and how can you answer this type of questions? First of all, what should you do? Then read it once and twice. If not followed, read it thrice, because ultimately this question carries 4 marks. 4 मार्क्स का सवाल है ये, राइट, जिसमें मैक्सिमम 8 फिल इन द ब्लैंक्स पूछी जाती हैं। तो क्या करना चाहिए? पैराग्राफ को पहले 1-2 बार ठीक से जान लेना चाहिए, उसमें क्या स्टोरी है, क्या मैसेज है और क्या कहना चाहता है वो हमें समझ लेना चाहिए। Let's see here. First, we start reading this paragraph. The Taj Mahal was built by Shah Jahan in memory of her wife. Construction began in 1632 and was complete in 1663. The architect was Isa Khan, who comes from Shiraz. The beauty of the marble dome and minarets are known throughout the world. All visitors are impressed by the dream-like beautiful of the Taj. Now, if we see this paragraph as we have read it, इससे हमें साफ पता चलता है कि ये जो पैराग्राफ है उसमें हमको ताजमहल बिल्डिंग के बारे में, उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, किसने बनाया, कब बना और वो क्या है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। बट whether whatever written here in every sentence is true or not, that we have to check it। मीन्स कि टेंस पैटर्न या कोई वर्ब फॉर्म या सिंगुलर प्लूरल या प्रोनाउन या आर्टिकल या प्रेपोजिशन, एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट में ये सब इंक्लूड हो जाता है। Editing of the text that doesn't mean only tense pattern, right? उसमें parts of speech, कितने parts of speech हैं? हाँ, parts of speech यानी कि सेंटेंस में कई तरह के जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा भी कई पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, राइट? वो क्या है? वो है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection, right? So these are 8 type of parts of speech in the language that is made use of in the sentence in one way or the other way। एक या दूसरे तरीके से वो parts of speech सेंटेंस में कहीं ना कहीं यूज़ किए गए होते हैं। इसका मतलब है कि हर एक सेंटेंस में 1-2 पार्ट्स ऑफ स्पीच तो मिनिमम होते ही हैं। कोई एक ऐसा वर्ब होता है या कोई ऐसा फंक्शन वर्ब होता है कि जिसमें कोई और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ज़रूरत होता नहीं है, काफ़ी सिर्फ वो एक ही काफ़ी है। फॉर एग्जाम्पल स्टैंड अप, राइट? If we say go, then we follow, कि मुझे जाना है। तो ऐसे टाइप के सेंटेंस भी सब वर्ड्स का भी उपयोग करते हैं जो एक वर्ड सिंगल वर्ड होने के बावजूद भी वो क्या है, अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है, क्योंकि उससे हमें जो क्रिया करनी है वो साफ पता चल जाती हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट। देन द ताज महल वॉज बिल्ड,
राइट। द ताजमहल वॉज बिल्ड, वॉज डिनोट्स पास्ट टेंस, राइट। और यहाँ पर है रूट वर्ब यानी कि मूलभूत क्रियापद। तो वॉज के साथ हर वक्त उसका पास्ट फॉर्म आता है और वो होता है बिल्ड, यानी कि एडिट करना है बिल्ड। द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हर, सही, शाहजहां की मेमोरी ऑफ हर वाइफ, वो शाहजहां की वाइफ है, राइट। यानी कि यहाँ पर जो हर है वो हमें एडिट करना है। इट इज शाहजहां मीन्स हीज वाइफ, हीज वाइफ। शाहजहां इज थर्ड पर्सन सिंगुलर मस्कुलर जेंडर एंड दैट्स वाई ही का हम कहते हैं हिम एंड हीज। हमें जो प्रॉपर है वो यहाँ रखना है हीज वाइफ, फुल स्टॉप हियर। कंस्ट्रक्शन बिगेन इन 1632 and was complete. Now see, construction began in 1632 and was complete. Now again here it is was, so obviously with was there will be ed form, यानी कि past form completed, that we have to edit from this line. In 1663, right, construction began in 1632 and was completed in 1663. The architect was Isa Khan, who made this construction. आर्किटेक्चर कौन था? तो वो उसका नाम था ईसा खान, की जो हु कम्स फ्रॉम, अगेन इफ यू ऑब्जर्व कि यहाँ पर सेंटेंस में वॉज पास्ट फॉर्म का वर्ब यूज़ किया है, बल्कि तब भी यहाँ पर हु कम्स यानी कि जो वर्ब है, राइट, ये जो हेल्पिंग वर्ब पास्ट फॉर्म का है, पर जो फंक्शन वर्ब है वो प्रेजेंट में है, तो ये हमें चेंज करना चाहिए, राइट। द आर्किटेक्ट वॉज ईसा खान हु केम फ्रॉम सिराज, कि जो सिराज से आया था। द ब्यूटी ऑफ द मार्बल डोम एंड मिनारेट्स आर, सही, यहाँ पर अब उस बिल्डिंग के बारे में कहा गया है कि द ब्यूटी ऑफ द मार्बल डोम, यानी कि ऊपर का जो उसका गोलाकार गुंबज, मार्बल डोम एंड मिनारेट्स, वो दोनों एक साथ लिया गया है, तो यहाँ पर प्लूरल आर आया है, जबकि हमें इज लिखना चाहिए, राइट। द ब्यूटी ऑफ द मार्बल डोम एंड मिनारेट्स इज नोन, क्योंकि वो पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड, इज नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे विश्व भर में उसकी गुंबज के बारे में और उसके मीनारों के बारों में लोगों ने उसकी सुंदरता को लोग जानते हैं, राइट। ऑल विजिटर्स आर इम्प्रेस्ड, सी अगेन हियर ऑल विजिटर्स आर इम्प्रेस्ड, जबकि यहाँ पर हमें पास्ट फॉर्म लिखना है आर इम्प्रेस्ड, हो गए हैं, इम्प्रेस्ड, IMPRESSED, impressed by
द ड्रीम लाइक ब्यूटीफुल ऑफ द ताज। यहाँ पर कुछ ठीक एडजस्ट नहीं हो रहा है या सूट नहीं होता है। ऑल विजिटर्स आर इम्प्रेस्ड, इट्स ओके, ऑल विजिटर्स आर इम्प्रेस्ड बाय द ड्रीम लाइक, जो कि सपने में लोगों ने देखा हो वैसा, ब्यूटीफुल ऑफ द ताज। नाउ ताज कैन नॉट बी यूज विथ द एडजेक्टिव हियर ब्यूटीफुल, इट इज चेंज इनटू द ब्यूटी। यहाँ पर हमें ड्रीम लाइक ब्यूटी के साथ चेंज करके ये लाइंस को एडिट करना है, और ऐसे ये जो एडिटिंग ऑफ द टेक्स्ट हैं वो यहाँ ख़त्म होता है। वैसे हमें टेंस पैटर्न का उपयोग कहाँ पर कैसे हुआ है, कौन से टेंस पैटर्न का वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, तो उसके साथ हमें उस टाइप का वर्ब लिखना है। कई बार हमें जैसे बताया प्रोनाउन चेंज करना है, कई बार हमें सिंगुलर प्लूरल को भी ध्यान में रखना है, कई बार हमें नाउन को ठीक करना है। और वैसे ये एडिटिंग ऑफ द टेक्स्ट का जो क्वेश्चन है, जो 11th और 12th दोनों में, राइट, 11th और 12th दोनों में कॉमन तरीके से ही पूछा जाता है। और ये सवाल ये हमने इसीलिए 11th-12th इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कॉमनली आज रखा है। मैं समझता हूँ कि आज आपको ये सवाल ठीक से समझ में आ गया होगा। आपको उसको बहुत अच्छी तरह से एक बार दो बार रीड करके एडिटिंग ऑफ द टेक्स्ट में कौन सा वर्ड आप सिलेक्ट करोगे कि जिसे आप एडिट करना है, वो डिसाइड करना है ठीक से रीड करने के बाद। और ऐसे ये एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकंड यूनिट टेस्ट। थैंक यू।